Okay. So here is a writing task one. You should spend about 20 minutes on this task. You recently received a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or try to get a job. You think he or she should get a job. Write a letter to this friend. In your letter, say why he or she would not enjoy going to college. Explain why getting a job is a good idea for him or her. Suggest types of job that would be suitable for him or her. Okay, write at least 150 words. You do not need to write uh, any addresses. Begin your letter as follows. Okay, and now we are moving towards written solution, and you would see what sample writing task band 7 है, इसका जो स्कोर है, ये एक सैंपल है जी आपके सर। लिए और ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। डियर हेलो, I am writing a reply to your letter that asking for advice about whether to go to college or try to get a job. यानी लेटर का जो पहली 2 से 3 लाइनें होती हैं वो ये बताती हैं कि लेटर किस चीज़ के बारे में है और आप जो है जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके मुताबिक ही आप उसके सैल्यूटेशन करते हैं। हेलो लिख देते हैं या होप यू आर फाइन, ठीक है ना, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग अ रिप्लाई टू योर लेटर, ठीक है ना, उसने लेटर आपको लिखा था तो आप आगे से लिख रहे हैं आई एम राइटिंग अ रिप्लाई टू योर लेटर दैट आस्किंग फॉर एडवाइस अबाउट वेदर टू गो टू कॉलेज और टू ट्राई टू गेट अ जॉब। आई आई देखिए इसने थिंक में जी लिख दिया, के लिखना था। आई थिंक ट्राइंग टू गेट अ जॉब इज बेटर फॉर यू। आई वुड लाइक टू राइट रीजंस व्हाई। अब उसने फर्स्ट जो 3 लाइंस में पर्पस ऑफ द लेटर लिख दिया। अब अगले जो 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें दिए जाते हैं, अब पैराग्राफ 1 में वो है, 2 में फिर आगे। एट फर्स्ट कॉमा जी आई विल मेंशन अबाउट disadvantages of going to college. I think you would not enjoy it because in a college, especially Japanese college or any college, you could only meet people who are around same age as you. You must have already met such a people in your junior high school and high school. In addition, in addition to it, many students tend to just have fun with friends besides study. The reason why this happens, it is usually very difficult to enter colleges, but to graduate it is not so difficult. For that reason, many college costs costs huge of money on you. The fee of it is not cheap, of course. I think it is waste of money to go to college. ठीक है? So here he has mentioned why he or she shouldn't go to college. There are some reasons. And now next I would tell you why getting a job is good idea for you. The most valuable point is experience, not like college. You can see many people from different age of you. By talking with them, you can get many knowledge of life, and it would be good for you, not only for people. You can also get important experience from working. You could know how different to earn the money, and also you can know many social system as well. Last paragraph. Lastly, I would like to suggest the types of job that would be suitable for you. I think you I think you are यहाँ पे आर आना था, you are good at talking with people, so the reception of company, school or hotel would be good. You can meet not only college colleagues but also many people of customers, many kinds of customers कहा जा सकता है. If you would get a job of hotel, you can use your English skills as well. In conclusion, I should try to get a job for these reasons. Good luck for you. ठीक है ना, यहाँ पे आई की जगह you should आना था, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक्स भी जी हैं। सर। तो यानी इस तरह लेटर एंड हो गया।
तो अब इस लेटर के ऊपर ना एग्जामिनर के कमेंट्स हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज, द रिस्पॉन्स इज रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट। इसका मतलब ये है कि जब आप लेटर लिखें तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट कैसे होगा? वो जो 3 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपने 3 पैराग्राफ्स में लिख देने हैं, और पहला पैराग्राफ में पर्पस ऑफ द लेटर लिख देना, ठीक है ना, एंड अप्रोप्रिएट। द कैंडिडेट प्रेजेंट्स ईच बुलेट पॉइंट क्लियरली एंड एक्सटेंड सपोर्ट ईच वन वेल, कि जो बात करता है उसको सपोर्ट भी करता है, साथ उसमें बताता है कि अगर आपने कॉलेज नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना, अगर आपने जॉब करनी है तो क्यों करनी है। Ideas are logically organized and there is clear progression throughout the response. Use of discourse marker is managed somewhat mechanically at first. ये देखें ये चीजें at first यानी पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, however ताहम, next, also, lastly, as well, तो ये चीजें हमने यूज करनी है in conclusion. But there is good use of other cohesive devices such as reference and situation, although there are some instance of inaccuracies, यानी कहीं कहीं पे मिस्टेक्स भी है। इट सच अ पीपल, यानी ये जो उसने गलतियां की, सच अ पीपल जो मैंने पॉइंट आउट भी की थी ना, द रीजन व्हाई दिस हैपन, फॉर दैट रीजन, ये भी इसने ठीक रहा। मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट, देम फॉर दीज रीजन। द रेंज ऑफ लेक्सिस, यानी ये जो वर्ड्स हैं या वोकैबुलरी है, डिमॉन्स्ट्रेट सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिजन एज वेल एज एन अवेयरनेस ऑफ स्टाइल एंड कोलोकेशन। डिसएडवांटेज, around same age as you, just have fun with friends, very difficult to enter, Japanese college graduate, huge, not cheap, waste of money, reception, colleagues, ये spelling का मसला था, customers, English skills, although occasional errors in spelling and word formation occurs, a variety of complex structure is attempted, but the grammatical count is variable. This lack of control is probably the weakest aspect of this script. तो इस तरह जब एग्जामिनर आपके लेटर को देखता है, तो जब आप ये एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होता है कि किस तरह से एग्जामिनर आपके टास्क को देखता है और कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व करता है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब आपको, और इसको 7 बैंड्स मिले हैं जो ऑन एवरेज जो है देखने के बाद एग्जामिनर ने उसको दिए हैं, ये तमाम ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सवाल करना चाहते हैं अब तक की बात के बारे में? सर। अच्छा जी, अब इसके बारे में क्या है, हमने ये देखना है कि हमने भी इसी तरह एक लेटर लिखना है। उसको स्टार्ट आप करेंगे, पहली 2-3 लाइनों में आप पर्पस ऑफ द लेटर लिखेंगे, अगले 3 पैराग्राफ्स में आपने वही 3 बुलेट पॉइंट्स को मैनेज करना है जो आपने लेटर के शुरू में देखे हैं, ठीक है। इसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी, वीडियो से आप एक दफा देख के पढ़ भी लें, उसके बाद आपने खुद से वो लेटर लिखना है। क्लियर? जी सर। ओके। अब इसके बाद हम इसी तरह एक प्रैक्टिस करने लगे हैं राइटिंग टास्क 2 की। सबसे पहले मैं आपको इसका टॉपिक दिखाऊंगा और फिर इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये बैंड 6 की जी बोलिए। सर, जो लेटर वगैरह ये है या कोई भी, वो हम प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे ना, मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल, ये ये प्रैक्टिस के रियल लिए है ना। एग्जाम। जी ये जी सर, बोल। और रियल एग्जाम में कोई ऐसा लेटर आ जाता है जिसके बारे में मतलब इतना सही से मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं कि, आइडिया हो रहा होता, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये तब बहुत आपकी तब क्या वैलिड बात है। सॉल्यूशन होगा? जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि आइल्स एग्जाम का ये क्राइटेरिया है कि कभी भी स्पेसिफिक नॉलेज का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए जैसे अभी मैं ये आपके सामने टास्क है, अब देखें ये आम बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको नॉलेज चाहिए, जिसमें आपको नॉलेज चाहिए नॉलेज है, होगा, ऐसा नॉलेज। टॉपिक नहीं होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉपिक लिखा हो कि आपने लेटर लिखना है कि व्हाट वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट वाज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको तो उसका जनरल नॉलेज है ही नहीं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो इसी तरह कोई साइंस का सवाल आ जाए या जिसमें स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत हो, ऐसा सवाल आइल्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ही नहीं जाता। ओके। तो ये देखें ना यस कि सर। ये जनरल बात है कि आपने, आपके दोस्त ने आपसे एडवाइस मांगी है, तो ये जनरल बात है। तो इसमें स्पेसिफिक नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत हो। हाँ, आपको जरूरत है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर सीखने की, वोकैबुलरी सीखने की, क्योंकि जाहिर है यही 2 चीजें हैं
जो आपको बेहतर राइटिंग करने की तरफ लेके जाएंगी। ओके, इसी तरह आप राइटिंग यस टास्क 2 का हम एक सैंपल देखते हैं कि इसमें भी टास्क 2 में भी यही चीज मेंशन की जाती है कि जनरल आपको बात की जाती है, स्पेसिफिक नॉलेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है कि राइटिंग टास्क 2 यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स, पहले वाले टास्क पे आप 20 मिनट्स लगाएंगे, इस पे 40 मिनट्स। राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। एम्प्लॉयर्स समटाइम आस्क पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब्स फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो समटाइम्स जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देते हैं, उनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं, जो जॉब करता है वो एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर समटाइम आस्क पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? यानी आपका पासपोर्ट, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। जाहिर है एम्प्लॉयर ने जब जॉब देनी है तो ये चीजें तो मांगते हैं, सच एज देयर हॉबीज and interest and whether they are married or single. Some people say that this information may be relevant and useful, others disagree. Discuss both these views and give your own opinion. तो इस ऐसे में आपको डिस्कस बोथ व्यूज कहा गया है कि कुछ कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और कुछ कहते हैं ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए या ये बात यस नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, तो इसमें आपसे कहा गया कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। 250 वर्ड्स हमने लिखने हैं। तो इसमें आपने ये चीज पेश नजर रखनी है कि जो है टॉपिक समझ आ गया सबको? यस सर। कोई पूछना चाहता है टॉपिक के बारे में? क्योंकि सबसे पहले नो हमें सवाल समझ आना चाहिए। ओके, हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं, उसको पढ़ते हैं और साथ साथ आपको बताते जाएं कि इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और दिस वुड बी गुड फॉर यू टू रिव्यू इट अगेन। ओके, और वहां से हम क्या चीज यस सीखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहां से हम क्या चीज सीखेंगे, और ये सैंपल आपको दिखाने के बाद आप इससे क्या चीजें सीखेंगे जो कि आपके काम आएंगी। Okay, now we are moving towards the solution of this writing task. अब ये टास्क 2 है जिसमें ये हमारा ऐसे हमने लिखना होता है और ये हमारे पास जो है आ गया solution. Sometimes in interviews, some employers ask jobs candidates for personal information such as hobbies and interests or family situation. Some people think that this information should be confidential and candidates for job don't have to give private information to employers. तो वही बात जो हमारे टॉपिक में होती है उसको अपने अल्फाज में लिख के पैराफ्रेज कर दिया जाता है पहले पैराग्राफ में। ठीक है, ये बात समझ आ गई यस आपको? सर। ओके, अब दूसरा यस सर। पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ शुरू हो गया, अब दूसरे पैराग्राफ में उसने कहा फॉर इंस्टेंस इन अ सबर्ब, यानी सबर्ब ऑफ पेरिस, यानी पेरिस के जो साइडों वाले इलाके हैं, पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब सेड इन देयर करिकुलम वाचई they lived in a very unpopular suburb and they practiced rap music. These people hadn't been chosen for the position while they had all the skills and degrees for it. In this case, personal information can be the cause of a kind of discrimination. In the other hand, some employees prefer to have a very united works team because they like it's a factor to improve reliability in companies. In this case, personal information such as hobbies and interests could be very precious. तो यहाँ पर वो ये बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि अपना अपना ना बैकवर्ड एरिया बताते हैं तो उससे उनके सिलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। और इसी तरह समटाइम्स आप हॉबीज बताते हैं तो शायद हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन रोल प्ले करती है, चाहे वो आप कहीं पे भी रहते हैं, बंदा कहता है ये जनाब बहुत दूर दराज गाँव से है तो इसको तो इसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होगी, हालांकि हो सकता है कि बहुत दूर दराज से भी उसने पढ़ा है, उसने चीजों को सीखा है तो बेहतर हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है किस तरह वो इम्पेक्ट कर सकती है बंदे की सिलेक्शन के ऊपर। Finally, a works team who share the same interest and hobbies is more uh, performant because of the good relationship between Really? each member. Secondly, a man applying for job sorry, who have hobbies and interests shows that
ही हैज, ना ही हैव लिखा है, ही हैज अ बैलेंस लाइफ, इट इज द सेम फॉर ए वुमन। तो मसलन जब आप अपने बारे में बताते हैं कि मेरी हॉबीज ये हैं, मेरे इंटरेस्ट ये हैं, तो फिर ये एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन होती है इन माय ओपिनियन। अब आप अपना ओपिनियन देखें, पहले 2 पैराग्राफ में उसने अपनी आइडियाज नहीं देखे, उसने कहा कि लोग ये सोचते हैं, फॉर इंस्टेंस लिख दिया, एक और एग्जांपल दे दी। तो इसके बाद उसने इन माय ओपिनियन अब अपनी राय देने लगा है। इन माय ओपिनियन गिव सम पर्सन, गिविंग सम, देखे ना, गिव सम पर्सनल इंफॉर्मेशन, गिविंग सम, ये यहाँ पे आना था, मिस्टेक्स तो होती है ना, जैसे सैंपल आंसर है ये। गिविंग सम पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हेन आई हैव एन इंटरव्यू फॉर ए जॉब could be a way of talking about me. I think an employer uh, has to know, यहाँ have लिखा है, has आना था, have to know which के spelling गलत लिखे हुए हैं, which person he has in front of him. It's much more important if the position requests responsibility. वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर को भी पता होना चाहिए कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, किस लेवल का बंदा बैठा है। एट फाइनल, even so, sometimes it's not really relevant or useful to give personal information for people applying for job. Most of employers have to know their interest, hobbies, or uh, family situation. या familiar situation लिखा है, FAMI, या familiar होगा ये, यानी ये वर्ड क्लियर नहीं है। अब जब ये लिखा गया है तो इसने जो इसमें लैंग्वेज में भी समटाइम्स इश्यूज आ रहे हैं, कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, तो ये चीजें एग्जामिनर नोट करता है। और यहाँ पर हमें भी एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे हैं। द कैंडिडेट एड्रेसेस आर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट अप्रोप्रिएटली। ऑल पार्ट्स कौन से हैं? जो आपको मैंने टास्क पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने जाना था, तो उसके अंदर जो बातें लिखी होती हैं उनको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। उसने कहा कि सारे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर उसने डिस्कशन की है। इसका मतलब है जब हम लिखेंगे तो हम भी टॉपिक के अंदर जो चीजें रिक्वायर की गई हैं उन सबको लिखेंगे विद एग्जांपल्स मीन्स और जो दो ओपिनियन। ओके, यस सर। विद एग्जांपल्स और एक्सटेंशन टू इलस्ट्रेट एंड सपोर्ट हिज आइडियाज, कि जो उसने आइडियाज लिखे हैं उनको एग्जांपल दे के सपोर्ट किया। हिज ओन पोजीशन इज क्लियरली स्टेटेड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स, के जो तीसरा पार्ट था उसमें उसने अपनी पोजीशन भी वाजे की है कि मैं इस बारे में ये सोचता हूँ। His response to the task is the best aspect of the script, but further support and extension would be required to achieve higher band here. कि ये उसने जो बातें लिखी हैं थोड़ी सी अधूरी हैं, अगर वो मजीद उनको एक्सपैंड करता तो और अच्छे बैंड लेता। देर इज अ क्लियर और ओवरऑल सर प्रोग्रेशन। कंक्लूजन भी तो नहीं दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसने वो एंड पे एट लास्ट इस तरह करके वर्ड लिखा है, प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दिया। बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने बताया। देर इज a clear overall progression in the response. The score markers are used somewhat mechanically with occasional errors. थोड़े थोड़े errors भी हैं। Sometimes use किया, for instance use किया। In the other hand, on the other hand होता है ये। Firstly, secondly, in my opinion, at final। ठीक है, तो ये चीजें एग्जामिनर नोट करता है, आपने ये चीजें यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि टास्क 1 और टास्क 2 में जो हम B1 के जो स्टूडेंट हैं आप लोग, तो उसके लिए किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। और इंशाल्लाह ताला टास्क 1 और टास्क 2 के बारे में आपको ऐसी गाइडलाइंस दी जाएंगी और उन पे अमल करवाया जाएगा कि आप में से कोई भी लेस देन 5 बैंड्स पे नहीं ठहरेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, okay, and there are some attempts to use other cohesive devices in this case, ठीक है ना, but paragraphing is poorly handled। देखें पैराग्राफ उसने छोटे छोटे बनाए हैं और उनका जो स्टार्टर्स हैं वो प्रॉपरली नहीं, आपको with some paragraphs consisting of a single sentence। The lexical resource is both adequate and appropriate for the task, showing some awareness of style and collocation, family situation, confidential, spurb of Paris, curriculum vitae, position, skills and degrees, discrimination, united, share the same interest and hobbies, good relationship between each member, a balanced life। तो ये जो उसने वर्डिंग यूज किया, जो लेक्सिस यूज किए हैं, ये बताया गया है कि यहाँ से पता चलता है कि वो लैंग्वेज के उसने कुछ ये जो वर्ड्स यूज किए हैं बड़े अच्छे हैं। बट देयर आर ऑल्सो एरर्स इन वर्ड फॉर्मेशन एंड स्पेलिंग। जॉब्स कैंडिडेट ये गलत लिखा है, इम्पॉपुलर वर्क्स टीम गलत लिखा है, विच के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। यहाँ पे रिक्वायर आना था रिक्वेस्ट लिख दे, या ये जो लफ्ज मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था ये वही वाली गलती थी उसकी। एज वेल एज टू इंस्टेंस वेयर मीनिंग इज अनक्लियर। ठीक है,
ये रेंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंट, क्योंकि ये मीनिंग का ही नहीं पता चलता। There is a mix of simple and complex sentence forms, but there are errors in grammatical control. These people hadn't choose for the position. Some employers prefers a man who have, ये have लिखा, has आना था। तो बहरहाल हमने यहाँ से पढ़ने के बाद हमने टास्क 1 पढ़ा, टास्क 2 पढ़ा, इस पे भी एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़े और इसमें से इसको 6 बैंड्स मिले हैं। कितने बैंड्स मिले हैं? 6। 6 देयर आर पॉइंट। देयर आर गुड थिंग्स, देयर आर एरर्स, देयर आर इश्यूज, बट ज़ाहिर है कि जब बच्चा काम करता है तो उसका जो भी उसने परफॉर्म किया होता है। एक्चुअली सर जी, जी। इसने इसमें मतलब वो जो बुलेट पॉइंट जैसे के होते हैं जो उनका ओपिनियन मतलब देना था, उसने ओपिनियन भी दिया, इसके अलावा उसने डिस्कस भी किया है दोनों उसके बारे हाँ जी, में। डिस्कस किया है, अ, इसने दोनों आइडियाज़ को डिस्कस किया है, फिर अपना जो ऑर्गनाइज़ किया है वो ठीक किया है। ये पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन यस दे सर, और दिया, एक फिर उसने एक आइडिया आध 1। एग्जाम्पल भी हाँ। साथ में दिए, जी, बिल्कुल, तो गुड। सर इस वजह उसने से। एक पैराग्राफ देखें, उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने ये किया है कि ये पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर एक आइडिया को इस जी पैराग्राफ में सर। डिस्कस किया, दूसरे पैरा को इधर डिस्कस किया, फिर अपना ओपिनियन दिया और एंड पे जब उसने जो है अपनी तरफ से ये कंक्लूजन लिखा है एट फाइनल, तो यानी देखें ना कितना यानी कैजुअल सा वर्ड है। इन कंक्लूजन भी थोड़ा आम वर्ड है। टू कैप इट ऑल यहाँ पे यूज कर सकता था या इस तरह के एक्सप्रेशन यूज कर सकता था। अब आपकी मीटिंग का आखिरी यस मिनट जा सर। रहा है। हमने अभी अभी सीखा है टास्क 1 और टास्क 2 और उसके सोल्यूशन को पढ़ा है। ये दोनों टास्क ही आपका टास्क है कि आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स पे लिखना है, चाहे अच्छा लिखें चाहे बुरा लिखें। ओके, अभी मीटिंग एंड हो जी जाएगी। सर। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कोई भी आपने पूछना हो। ठीक है, ये वीडियो इंशाल्लाह आज रात अपलोड हो जाएगी और फिर आप इसको भी देख सकेंगे। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप में मेरे से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। वो आपने बोला था कि ग्रामर के बारे में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आज जब मीटिंग शुरू हुई है तो वो तकरीबन 10-15 मिनट उसी में चले गए हैं। यानी लोगों को